JP Publication introducing digital platform for learning with Education House. Download the application Education House from Google Play Store and follow us on Facebook, YouTube and WhatsApp. Hello friends, in this video we will learn about the problems of small business, in which its introduction and the various problems of the small business are explained. Let's see all the topics in the detail through this video. Small-scale industries have many advantages, but some point of view it has some disadvantages too. The scale of operation, availability of finance, ability to use of modern technology, procurement of raw material, etc. problems are observed. So in comparison of large-scale business units, small-scale industries have some problems. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वैसे तो बेहतरीन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है और इकोनॉमी को डेवलप करने का भी बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि फाइनेंस को प्रोक्यूर करना, अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को कंटिन्यूअस रन करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को चेंज करना, रॉ मटेरियल लाना, ये सभी प्रॉब्लम्स स्मॉल स्केल सेक्टर्स में देखे जाते हैं. लेट्स सी ऑल द प्रॉब्लम्स इन द डिटेल. Problems of small business: finance, raw materials, labor, managerial skills, marketing, capacity utilization, technology, sickness, and global competitions. Let's see in the details. Finance. Small-scale industries are not able to collect the adequate finance to carry out its operation. Small business begin with the small capital, but due to the lack of creditworthiness, they collect the fund from unorganized sectors, whose rate of interest is higher and exploitations possible of small business. Even if bank do not lend the money without adequate collateral securities, which may create the problem of funds for the small business. हम जानते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फंड की जो भी जरूरत होती है, वो अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए जो भी फंड चाहिए वो इजीली कलेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं उसकी क्रेडिट वर्दीनेस मार्केट में बहुत कम होती है, तो उससे फंड लेने के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एक्सप्लॉइट भी करते हैं. कई बार हम देखते हैं कि बैंक भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन नहीं देती. विदाउट सिक्योरिटी कोई भी बैंक उसे लोन नहीं देती, इसीलिए उसे फंड रेज करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है. अनदर इज रॉ मटेरियल्स. Small business have another major problem regarding availabilities of adequate material on reasonable rate, because they have required the material in small quantity. So in comparison of large business units, they cannot get the advantages of lower cost of production. हम देखते हैं कि छोटे बहुत बिजनेसेस को रॉ मटेरियल अवेलेबल करने में भी बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं. यानी रॉ मटेरियल तो अवेलेबल हो जाता है लेकिन रिजनेबल रेट से नहीं मिल पाता, क्योंकि स्मॉल बिजनेस की जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत छोटी क्वांटिटी होती है. तो वो लार्ज बिजनेस जो भी दाम पर रॉ मटेरियल एडिक्वेट कर पाते हैं, ले पाते हैं, उस रेट पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल नहीं ले पाती. इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है. अनदर इज लेबर. Small business firms cannot pay the higher wages and incentive to their employee in comparison of large-scale business units. So well-skilled employee and talented people avoid the job of small business and accept the job of large-scale business. Division of labor and specialization benefits not received by small business. हम जानते हैं कि जो भी छोटे बिजनेस होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा सैलरी एम्प्लॉइज को नहीं दे पाते, और उसकी वजह से ही बहुत सारे एम्प्लॉइज स्मॉल स्केल में काम करने की जगह पर लार्ज स्केल में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं. जो टैलेंटेड एम्प्लॉय होते हैं, जो बहुत अच्छी स्किल वाले एम्प्लॉय होते हैं, वो कभी भी स्मॉल बिजनेस यूनिट में जॉब करना पसंद नहीं करेंगे. इसलिए हम देखते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास जो भी लेबरर होते हैं वो अनस्किल्ड होते हैं, बहुत अच्छे टैलेंटेड नहीं होते, और उसे डिवीजन ऑफ लेबर का बेनिफिट, यानी जो काम का डिवीजन होना चाहिए उसका बेनिफिट नहीं मिलता, या स्पेशलाइज्ड जो लेबर के बेनिफिट्स यानी उसकी एक्सपर्टीज एंड नॉलेज का बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता. अनदर इज मैनेजरियल स्किल. Small business is generally promoted and operated by the single person, who may not possess all the managerial skills required to run the business. Many of the small business entrepreneurs possess sound technical knowledge but are less successful in the marketing the output. They are not in the position to afford the professional manager. छोटे बिजनेसेस के एक अनदर प्रॉब्लम ये भी है कि वो एक या दो आदमी ही हैंडल करते हैं,
तो उनके पास सभी मैनेजरियल स्किल नहीं होती, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि ऐसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर अपने नॉलेज या अपनी अच्छी से स्किल के हिसाब से प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन कई बार उनके पास मार्केटिंग की स्किल नहीं होती, तो इसलिए वो अपना माल को अच्छे से बेच नहीं सकते, और वो प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर भी नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वो कॉस्ट बेयर नहीं कर पाते। तो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स है कि जिसमें मैनेजरियल स्किल्स का लूफॉल्स होने की वजह से या कम मैनेजरियल स्किल होने की वजह से स्मॉल बिजनेसेस अच्छे से रन नहीं हो पाते। Marketing is the most important activity to generate the revenue. In small organization, marketing is the weaker. These organizations have to depend excessively on the middlemen, who exploit them by paying the lower price and delayed payment. Small business cannot afford their personal marketing expenses because of the lower skilled people and the problem of funds. छोटे बिजनेसेस में हम ये प्रॉब्लम भी देखते हैं कि उसकी मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी नहीं होती। हर एक बिजनेस को अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट्स होती रहती है, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वो मार्केटिंग में बहुत वीक रहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो अपने माल को बेचने के लिए मिडलमैन पर डिपेंडेड होते हैं, लेकिन मिडलमैन उसे कम दाम देते हैं, उसका एक्सप्लोटेशंस करते हैं और कई बार पेमेंट में भी डिले करते हैं। वो अच्छे से अच्छे मार्केटिंग पर्सन्स के एक्सपेंस को बेयर नहीं कर सकते और अच्छे स्किल पीपल को हायर भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास फंड नहीं होता है और लिमिटेड सोर्सेस होते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हम स्मॉल बिजनेस में देखते हैं। अनदर इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ड्यू टू द लैक ऑफ मार्केटिंग स्किल और द लैक ऑफ डिमांड, मैनी स्मॉल बिजनेस फर्म have to operate below the full capacity, due to which their operating cost tends to increase. Gradually, this leads to sickness and the closure of the business. Maximum capacity cannot be utilization in the small businesses. हम देख सकते हैं कि स्मॉल स्केल बिजनेस के पास अच्छी मार्केटिंग स्किल नहीं होने की वजह से और मार्केट में प्रॉपरली डिमांड भी नहीं होने की वजह से वो अपनी कैपेसिटी को मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर पाते और वो अपनी कैपेसिटी से भी कम प्रोडक्शन करते हैं, जिससे उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ने लगती है। इसकी वजह से ही बहुत सारे स्मॉल स्केल जो बिजनेस होते हैं वो लॉस मेकिंग हो जाते हैं और कई बार उसे अपना बिजनेस बंद कर देना पड़ता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इसी वजह से ही अपने मैक्सिमम कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती और बिजनेस बहुत वीकर रह जाते हैं। अनदर इज टेक्नोलॉजी। इन स्मॉल बिजनेस समटाइम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इज ऑब्जर्व्ड, so cost of productions increases and lower productivity and uneconomical productions is generated. They are not able to develop the new technology because of the problems of fund. हम जानते हैं कि छोटे बिजनेसेस आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से चलते हैं क्योंकि उसके पास नई टेक्नोलॉजी परचेस करने के लिए सफिशिएंट फंड नहीं होता और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करने की वजह से उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी कम रहती है। उसका जो प्रोडक्शन है वो कई बार उससे अनइकोनॉमिकल रहता है, यानी उससे बहुत अच्छे से पैसे नहीं कमा सकते और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की उसके कंपैरिजन में भी वो लोअर क्वालिटी वाले होते हैं, तो उसकी वजह से ही स्मॉल इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे से टिक नहीं पाती। अनदर इज सीकनेस। इन स्मॉल बिजनेस some internal problems like the lack of skilled and trained labor and the managerial and marketing skills, as well as external problems like delayed in payment, shortage of the working capital, inadequate loans and the lack of demand for their products create the sickness in small businesses. हम देखते हैं कि छोटे बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स लॉस मेकिंग का होता है और उनका डेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा होने के दो मेन रीजन होते हैं। एक इंटरनल फैक्टर्स बिजनेस के, जिसमें जो भी वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉय है वो नहीं होते, स्किल्ड एम्प्लॉयज के बेनिफिट नहीं मिलते, अच्छी मैनेजरियल या मार्केटिंग स्किल नहीं होती और बहुत से एक्सटर्नल प्रॉब्लम जैसे कि पेमेंट में डिले होना, वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज होना, लोन एडिक्वेट नहीं मिल पाते जिससे फाइनेंस वो रेज नहीं कर पाते और उसकी वजह से मार्केट में जो उसकी डिमांड होती है उसके प्रोडक्ट की वो भी कम होती है, जिससे उसकी रेवेन्यू भी कम रहती है। उन सभी फैक्टर्स की वजह से बिजनेस में सीकनेस बढ़ती है, यानी बिजनेस की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छे से स्टेबलाइज नहीं बन पाती और कई बार ये बिजनेस बंद भी हो जाते हैं और लॉस मेकिंग भी हो जाते हैं। अनदर इज ग्लोबल कंपटीशन। ड्यू टू चेंज इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आफ्टर 1991, world economy associated with many countries in a liberalization, privatization and globalization trends. Small business feel the threatened with onslaught of the global competitions. In competitions of the multinational companies, small business units cannot survive.
Difficulties arises in quality standards, technological skill, financial creditworthiness, managerial and marketing capabilities in comparison of multinational companies. For global market, small business follow the quality certifications like ISO 9000, which is difficult for small business. हम देखते हैं कि जब भी 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ, उस टाइम से ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स बढ़ गई और स्मॉल बिजनेस के लिए एक खतरा बन गया। इसकी वजह से स्मॉल बिजनेस मार्केट कॉम्पिटिशन्स में बहुत अच्छे से टिक नहीं पाते, मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने वो अच्छे से सर्वाइवल नहीं कर पाते। बहुत से ऐसे एरिया और पैरामीटर्स है जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टिक नहीं पाती, जैसे कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, टेक्नोलॉजी बहुत पुअर होती है, अच्छी स्किल्ड एम्प्लॉय नहीं होते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, मैनेजरल मार्केटिंग कैपेसिटी उसकी कम होती है, जो मल्टीनेशनल कंपनी के सामने टिक नहीं पाती और इसकी वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बर्बाद हो जाते हैं। ग्लोबल मार्केट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्वालिटी सर्टिफिकेशंस ISO 9000 भी चाहिए होता है, जो कई बार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्वालिटी के मामले में या बहुत सारे पैरामीटर्स के मामले में नहीं ऑब्टेन कर पाती, ले नहीं पाती, इसलिए भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मार्केट में लॉन्ग लाइफ तक नहीं टिक पाते। So those all are the various problems have been observed in the small business. Thanks for joining with us. Have a great day.